क्योंकि अभी ये रिसेंटली किया चैप्टर, तो आप लोगों के लिए इजी होगा ये इसको रिवाइज करना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। Write down the important terms. प्लांट फिजियो में ये 2 चैप्टर्स काफी स्कोरिंग है। पहले हेडिंग लिखो क्रेन्स एनाटमी। ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो दिन के टाइम जिनके अंदर स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड इट इज ओपन ड्यूरिंग नाइट बिकॉज ऑफ हाई एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो लिखो इसमें क्रेन्स एनाटमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 plants. Characteristic of C4 plants where mesophyll is undifferentiated characteristic of C4 plants where mesophyll is undifferentiated We have started with the revision from chapter 13. तो इसमें पहले आप टर्म लिख रहे हो Krenz anatomy. Krenz after the name of scientist, KRNTZ भी हो सकता है, KRNZ भी हो सकता है, Krenz anatomy. The characteristics of C4 plants where mesophyll is undifferentiated and its cells occur in concentric layer. Its cells occur in concentric layers around vascular bundle. Characteristic of C4 plants where mesophyll is undifferentiated and its cells occur in concentric layers around vascular bundles. लिख लिया बच्चों सभी ने? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखोगे। क्रेन्ज एनाटमी लिख लिया सभी ने? यस? Yes, ma'am. Okay. Write down the heading PAR. PAR. What is the full form of PAR? PAR की full form लिखो photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation. Manpreet, we are doing revision of from chapter 13. तो आप ये लिख रहे हो इसमें पहली आपने टर्म लिखी है क्रेन्ज एनाटमी, दूसरी टर्म लिख रहे हो पार। पार की फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लिखो इट इज द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन it is the portion of spectrum between 400 nanometer to 700 nanometer.
It is the portion of spectrum between 400 nanometer to 700 nanometer. Next heading लिखो red drop. Red drop में लिखो a sharp reduction in the rate of photosynthesis. Sharp reduction in the rate of photosynthesis. Sharp reduction in the rate of photosynthesis when monochromatic beam of more than 680 nanometer. Monochromatic means single color, red color. When monochromatic beam of more than 680 nanometer was used alone. 680 nanometer was used alone. A sharp reduction in the rate of photosynthesis when a monochromatic beam of more than 680 nanometer was used alone. Next heading लिखो. Manpreet, we are doing important terms from chapter 13. Clear everyone? Ritika, clear है बेटे? अब ये terms लिखो. Important terms आती हैं. Next heading लिखो compensation point. Compensation point. Compensation point क्या होता है? Point at which CO2 intake and output are equal. Point at which CO2 intake and output are equal. Point at which CO2 intake and output are equal, and rate of apparent photosynthesis is 0. Rate of apparent photosynthesis is 0. Next heading action spectrum. छोटी छोटी टर्म्स हैं, नहीं समझ आता क्या इनका आंसर करना है, तो लिखो इनको एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम मेरे को रेट, एक्चुअल रेट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, actual rate of oxygen evolved or CO2 consumed. The actual rate of oxygen evolved or CO2 consumed during photosynthesis actual rate of oxygen evolved or CO2 consumed during photosynthesis is plotted against different wavelength of light. Is plotted against different wavelength of light. Is plotted against different wavelength of light. इसी के साथ कौन सा आता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आप सिर्फ लिख रहे हो ये टर्म्स, इनको लर्न करना है साथ में.
एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखो a curve reflecting amount of light absorbed, curve, curve, curve reflecting amount of light absorbed by pigment at each length, at each wavelength. Curve reflecting amount of light absorbed by pigment at each wavelength. Done, everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, got it, Vite. Please write down the next question. Difference between chlorophyll A and chlorophyll B. And we are doing important questions from these chapter and this chapter. And जो आप लोगों को नहीं आएगा समझ, I'll explain side by side. पहले आप questions note down करो और ये question आप लोगों को learn करना है. Difference between chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A के लिए लिखो it is blue green in color. It is blue green in color, whereas chlorophyll B is yellow green in color. Chlorophyll A is highly soluble in petroleum. And chlorophyll B is highly soluble in methanol. It has methyl group attached to third carbon, whereas it has aldehyde group attached to third carbon. एक में मिथाइल ग्रुप है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये फॉर्मूला बताए थे C55 it's 72O5N4Mg. इसका था C55 it's 70O6N4Mg. ये फॉर्मूलाज हैं. डन. Yes, ma'am. ओके, ये तो सिंपल है, सभी के लिए क्लियर है, इजी है ये क्वेश्चन. तो डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, उनका फॉर्मूला अलग है, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग है, उनका कलर अलग है, तो इनके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया. नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज immersion enhancement effect? What is immersion enhancement effect?
मुझे प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। एक होती है रेड, एक होती है फार रेड। एक लाइट एब्जॉर्प्शन का एरिया है रेड, एक है PFR. When this light is given to the plant, the rate of efficiency of photosynthesis is maximum in red, and it decreases when we give this far red. But if these two lights are given simultaneously, then the rate of photosynthesis increased effectively, बहुत ज़्यादा increase हो गया. And when these were given alone, only red light was giving enhancement in the rate of photosynthesis. But when they were together, they enhanced मतलब बहुत ज़्यादा enhance कर दिया rate of photosynthesis, drastically enhanced the rate of photosynthesis when, but then they were given separately. This observation led to a suggestion that two photochemical reaction, they function together, matlab PR or PFR, they work together to evolve oxygen from which reaction? Light reaction. Light reaction means photosynthesis. I'm repeating कि जो plants की efficiency है that is maximum in red, but it decreases in far red. But Emerson, Robert Emerson is a scientist. ये scientist का नाम है Emerson. He demonstrated that when these two lights were given simultaneously, rate of photosynthesis increased subsequently. This observation suggested that there are these two photochemicals, they function together and helps in involving O2 from the light reaction. कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? मैम फोटोसिंथेसिस इंक्रीज किसमें करता है? दोनों मिलके करते हैं? वैसे दोनों ही इफेक्ट, अगर प्लांट में हम रेड लाइट देते हैं तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होता है बिकॉज द रेंज इज फ्रॉम 650 टू 680. और अगर आपको याद हो कि टू रीजन्स हैं, कौन से हैं सीरत? एक रेड लाइट और दूसरी, ब्लू लाइट। हाँ, तो दो पीक्स आते हैं. ये दो पीक्स में जो जो वेवलेंथ है वो मतलब हाई होती है. तो जब 400 था, 500, 600, 700, तो एक पीक आई रेड में, एक आई ब्लू में. ब्लू की बात नहीं हो रही, अब हम रेड की बात कर रहे हैं. कह रहे हैं जब हमने रेड लाइट दी प्लांट्स को तो दे shows the efficiency of photosynthesis and it was maximum in red light. But when immediately after this there was far red से आगे चलेगी वो light, the efficiency decreased altogether. तो रेड रीजन तो ये आ गया, इसी के साथ फार रेड आ गया, तो efficiency decreased. तो इमर्सन, रॉबर्ट इमर्सन एक साइंटिस्ट था, he demonstrated that the rate of photosynthesis was increased when both the lights, red and far red, they were given simultaneously, because it was observed that these two lights, they function together to evolve oxygen during light reaction. ये रीजन था कि ये रिएक्शन बहुत इनहांस हुआ. राइट डाउन the efficiency of photosynthesis. Please be quick. The efficiency of photosynthesis. The efficiency of photosynthesis is maximum in red light. The efficiency of photosynthesis is maximum in red light and it decreases in far red light.
The efficiency of photosynthesis is maximum in red and it decreases in far red. Emerson demonstrated, Emerson scientist का नाम है, Emerson demonstrated when these two lights were supplied simultaneously. Emerson demonstrated when these two lights were supplied simultaneously, rate of photosynthesis was increased subsequently. उसने कहा कि जब ये रेड और फार रेड इकट्ठी दोगे तो इनहांस किया. इनहांस करना मतलब एकदम इंक्रीज कर जाना. तो रीजन क्या आया? दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द सजेशन दैट, तो ये आपकी स्क्रीन पे डायग्राम बना हुआ है कि जब दोनों लाइट इकट्ठी होती हैं दे इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. So this observation led to suggestion that these two photochemical reaction work together to evolve oxygen This observation led to suggestion that these two photochemical reaction they function together in evolving oxygen from during light reaction. बच्चों अब आप लोगों को जिस बच्चे ने नहीं किया हुआ वो रिएक्शन ऑलमोस्ट आई थिंक सभी ने ये किया हुआ है. लाइट रिएक्शन क्या होती है? पूछा जाता है व्हाट इज लाइट रिएक्शन. RXN मीन्स रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दे ट्रैप सनलाइट एनर्जी. क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं they trap sunlight energy and transfer this electron. They eject the electron from these pigment molecules. These are all pigment. तो pigment में से eject करेंगे electron and this excited electron from ground state to excited state is passed on to primary acceptor. So this is what is light reaction. तो light reaction में क्या है? The electrons they are transferred from ground state to the excited state और ये जो ट्रांसफर करता है इसको जो इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी को लेके आएंगे ये इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर. और रिएक्शन सेंटर इज जनरली क्लोरोफिल A. It is present in both the photosystem PS1 and PS2. अगर किसी को नहीं समझ आया लाइट रिएक्शन क्या है, it is a process of absorption of light which helps in releasing electron from ground state to the excited state via this pigment molecules. Okay. Yes, clear everyone? Yes, ma'am. Yes. In PS1, in photosystem 1, the reaction center is at 700 nanometer, whereas in PS2, the reaction center is at P6, 680 nanometer. So there are different reaction centers for PS1 and PS2. PS1 absorbs the light
at 700 nanometer, whereas PS2 absorbs the light at 680 nanometer. तो light reaction का अगर आपको question आता है तो you make this diagram of LHC light harvesting complex along with this ये lines आपको लिखनी है. Now write down another question, difference between PS1 and PS2 जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को. Please be quick. PS1 and PS2. Please. रिया पूछना है बेटे कुछ आपने? रिया सबरवाल. Okay, write down in PS1 photo center is क्या होगा इसके अंदर बताओ? P700, whereas in PS2 photo center is P680. Dining. Dining. इसमें लिखो it captures electron from PS2. PS1 में लिखो it captures electron from PS2. Whereas in PS2 it captures electron from photolysis of water. PS1 में it captures electron from PS2 और photo system 2 में लिखो it captures electron from photolysis of water. Next point, the system is located on the outer surface of thylakoid membrane. The system is located on the outer surface of thylakoid membrane. और ये कहाँ located होगा? ये outer में था. ये कहाँ हो जाएगा? Inner surface. The system is located on the inner surface of thylakoid membrane. Last point, this system normally passes electron to NADP positive. The system passes electron to NADP positive. This system passes electron to PS1. The system passes its electron to PS1. Write down next heading, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. पहले आप लोग समझ लो. I'm going to start with this cyclic first. पहले आप लोग समझो, आपने किया भी हुआ है और सबको लर्न भी है. अगर नहीं लर्न है तो आप लोग देखोगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. साइक्लिक में क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न बैक टू द प्राइमरी एक्सेप्टर. तो P700 से ये स्टार्ट होगा. पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अभी हमने पढ़ा था. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं and ejects the electron. This electron is the excited electron is passed on to primary acceptor. Primary acceptor किसको देता है? Pyridoxine, plastoquinone,
आपकी किताब में ये नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। एक ही बात है। दिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन फिर से इसी का। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिटर्न्ड बैक टू द ओरिजिनल रिएक्शन सेंटर्स। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ कुछ भी। एनसीईआरटी में सिंपल ये दिया हुआ है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एक्सेप्टर, P700। तो अगर आपको याद करना है FD, PQ, PC, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और फिर ये चलती रहेगी साइकिल। और यहाँ पे थे फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटम जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने ही 2 फोटोन्स दिए थे जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर दिए। साइक्लिक में क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि पहले पानी का स्प्लिटिंग होगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पास ऑन होता है किसकी तरफ? प्राइमरी एक्सेप्टर विच इज P680। उसके अंदर P700 था, इसमें P680। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इजेक्ट हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? फिर से 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ गए। प्राइमरी एक्सेप्टर ने फिर से प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर दिए प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन देता है P700 को। P700 फिर से इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को, और प्राइमरी एक्सेप्टर देता है फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन दे देता है NADP। और NADP से क्या बन जाएगा? NADPH। तो अगर आपने देखा है इसको ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ यूज हो गया इन कन्वर्टिंग NADP इंटू NADPH। और H कहाँ से आया था? ये 2 H चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे? ये रहे। कितने बच्चों को ये समझ आ गया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? प्लीज बी क्विक इन रेजिंग योर हैंड। पलक, सीरत, एलिना, ऋतिका, अनुभव, विश्मीत, एंजेलिना, महक, रेया सबरवाल, मयंक, गोयल, कृतिका, शाबाश, मीनाक्षी, सोनी, वेरी गुड। यस, हरजोत, हर्ष, मलिका, मैं कौंडल, बेटे आई एम वेटिंग। उत्कर्ष, अंश, ओके हरजोत। मैम FDPQ वाला समझ नहीं आया इसमें। मुझे ये याद भी मत करो, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है ना वो वाली याद है आप लोगों ने की थी? एनसीईआरटी वाली याद है उत्कर्ष? यस मैम। हाँ, बस वही वाली लर्न कर लो, ये तो मैंने ऐड ऑन की है। ओके, यस मैम। बस मैंने आपको ये पूछा था कि आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक समझ आ गई कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न बैक इन साइक्लिक वन, नॉन साइक्लिक में इट इज यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो आप लिखो, तो अब लिखो डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में लिखो इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1।
साइक्लिक में हमने लिखा इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1. नॉन साइक्लिक में लिखो बोथ PS1. इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2. साइक्लिक में ओनली PS1. इन नॉन साइक्लिक बोथ PS1 एंड PS2. साइक्लिक में लिखो synthesizes only ATP. सिर्फ ATP बनता है और इसमें बनेगा both ATP and NADPH. both ATP and NADPH2. साइक्लिक में लिखो no water is used. और नॉन साइक्लिक में शुरू ही वाटर से होता है. वाटर इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन्स इसमें वापस आएंगे कि नहीं साइक्लिक में. electrons are returned to the reaction center. Whereas in non-cyclic, electrons once lost are not returned. In the case of cyclic, electrons are returned to the reaction center, whereas in non-cyclic, electrons once lost are not returned. Next cyclic में लिखो next है cyclic में it takes place in the grana of thylakoids. It takes place in grana of thylakoids. Non-cyclic में लिखो it takes place in stroma of thylakoids. Sorry, cyclic occurs in cyclic occurs in the stroma and non-cyclic occurs in the grana of thylakoids. लिख लिया बच्चों सभी ने. यस एवरीवन. यस मैम. ओके. क्या ये मुश्किल था यहाँ तक सभी. इजी था. यस और नो कि मुश्किल था. इजी. इजी इजी. हाँ बच्चे मुझे अब देखो इसमें तो पता ही है सभी को ये साइकिल्स आती हैं. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द साइकिल्स क्विकली. इसमें सभी को पता है कि केल्विन साइकिल विच इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल. Kelvin cycle, which is already given in your NCERT. This cycle is very important. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप क्या आता है. कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन. फिर आता है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल. नेक्स्ट आता है रीजनरेशन ऑफ ATP. रीजनरेशन ऑफ र्यूबिप. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है.
और बना भी हुआ है बहुत अच्छे से डायग्राम में। तो सबसे पहला स्टेप बताया आपको कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और लेने वाला कौन सा उसमें है? रुबिस्को एंजाइम। और ये बनाता क्या है? 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कह दो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह दो। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड changes into 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये आप लोगों को याद करना है। 3-फॉस्फो से 1,3 हो गया। एक फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फो लग गया, तभी ये डाई था, ये फॉस्फो था, ये डाइफॉस्फेट हो गया, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और जब एटीपी ऐड होगा तभी फॉस्फेट ऐड होगा, एटीपी से एडीपी। 1,3 डाइफॉस्फो से क्या हो जाता है ये चेंज? ग्लिसरल्डिहाइड by losing hydrogen, और हाइड्रोजन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ NADPH। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ बच्चे, स्क्रीनशीट नहीं आ रहा? नो मैम। मैम वेट वेट, वेट। ये साइकिल में शुरू से नहीं हुआ ये स्क्रीन शेयर? नो मैम। नो मैम ओके, कब से स्क्रीन शेयर ऑफ हुआ है? मैम केल्विन साइकिल केल्विन ड्रॉप करने। साइकिल करवानी ओके होती थी। ओके ओके ओके, केल्विन साइकिल स्टार्टिंग। जस्ट वेट, ये अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस था केल्विन साइकिल, जिसमें आपको बताया कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड रीजनरेशन ऑफ र्यूपिप। तो जब केल्विन साइकिल आपको बनाने के लिए आएगा, बट ऑब्वियस आपने बनाना भी है और इसके साथ आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। और ये 3 स्टेप्स दे आर ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। इसमें क्या कि जो कार्बन है दैट इज एब्सॉर्ब बाय दिस रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को क्या करता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट को चेंज कर देता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक और फॉस्फेट ऐड करता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा? एक कार्बन नीचे रिलीज कर देता है और चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि ये 6 होते हैं तो 6 में से एक कार्बन नीचे चला गया, बचे हुए रह गए 5। तो रीजनरेशन ऑफ र्यूबिब ये चेंज कर देगा और बना देगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। एंड दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो 5 कार्बन एक कार्बन और ले लेता है तो बन जाता है 6, लेकिन ये 6 की बजाय ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन है। फिर से 3 कार्बन, 3 में से ये 2 हैं, 2 इंटू 3 6 है, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन में से एक कार्बन नीचे चला गया तो रह गए 5 कार्बन। तो 5 कार्बन फिर से एक कार्बन अटैच कर लेते हैं। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप कैसे है? पहला स्टेप में आपने पढ़ा कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन। दूसरे स्टेप में ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, उल्टा हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल उल्टा, तो ये वही है। थर्ड है रीजनरेशन ऑफ र्यूबिब, तो र्यूबिब रीजनरेट हुआ, थर्ड स्टेप। तो आप लोगों को ये बनाना भी है, प्लस ये लिखना है आप लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ है कि इसमें आपका इनपुट क्या था और आउटपुट क्या है। इनपुट था कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम ये साइकिल होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो बनाते हैं एक ग्लूकोज, क्योंकि हर बार सिर्फ एक कार्बन नीचे जा रहा है। एटीपी इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे, NADPH बहुत ज्यादा यूज होंगे, 12 NADPH।
तो आप लोगों को ये भी देना है ओवरऑल। ओके, क्लियर एवरीवन? C3 Yes. प्लांट कॉमनली प्लांट्स ये शो करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, वो भी ये शो करेगा ये प्रोसेस C3। इसके अलावा ये तो आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस है, तो क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। इसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में सिर्फ आप लोगों को ये प्रोसेस बताया था कि इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन कंपैरिजन टू CO2, तो एंजाइम का नाम जो था रुबिब या रुबिस्को कार्बन को भी एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को भी, बिकॉज इट्स फुल नेम इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेज। तो ये उल्टा काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा अगर ऑक्सीजन ज्यादा है। उस प्रोसेस को हम नाम लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन, एंड फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन द केस ऑफ C3 प्लांट्स। और इसके लिए मैंने आपको 3, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन NCERT, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ड्यूरिंग रिवीजन क्लास। तो ये 3 ऑर्गेनेलीज में होता है, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। CPM आपने ये बनाई भी हुई है। एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये C3 प्लांट्स में होगी, जिसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं पौधे इंस्टेड ऑफ CO2, एंड 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा, डेजर्ट प्लांट्स है वहां पे ये ज्यादा ये प्रोसेस होगा फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन आपकी किताब में बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है NCERT में, सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, लेकिन आपकी NCERT बुक में है C4 प्लांट्स के बारे में। C4 प्लांट्स जैसे शुगर केन, मेज, सोरगम, ये प्लांट्स जो हैं स्पेशल साइकिल शो करते हैं विच इज C4 प्लांट्स, क्योंकि C3 में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वाज 3 कार्बन कंपाउंड, in C4 the first stable compound is 4 carbon compound and it occurs in 2 organelles, एक बंडल शीट, एक मेसोफिल। ये बंडल शीट है, ये मेसोफिल है। इसमें CO2 एब्जॉर्ब होती है और CO2 लेने वाला जो है दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन एक कार्बन और लेके 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है। और इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए साइकिल का नाम है C4। जो ये एसिड है इट मूव्स टू द बंडल शीट सेल, वहां Malic पे acid. मैलिक, और फिर वो एक कार्बन रिलीज कर देगा और फिर 3 कार्बन बना देगा। 3 कार्बन जो है फिर से मूव करता है, वापस आ जाएगा एंड दिस इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे बन जाएगा 3 कार्बन इज पायरुवेट, और पायरुवेट फिर से मूव करता है और वापस आ जाता है अपनी पोजीशन में 3 कार्बन में। और जो यहाँ एक कार्बन निकली है ये C3 साइकिल में चली जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें ये साइकिल्स लर्न नहीं हो रही, इसके लिए आप लोगों को 3 से 4 बार ये साइकिल बनानी पड़ेंगी, फिर लर्न करना है। और ये तो बच्चे साइकिल्स 101% आती हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इस चैप्टर की। और अगर आपने ये कर लिया तो आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो गया। 101% इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल बोला जाता है, C4 साइकिल को
hatch and slack pathway. Hatch and slack, after the name of scientist, hatch and slack pathway. अगर किसी को लगता है कि मुझसे नहीं हो रही है साइकिल लर्न, तो यू कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से की हुई हैं. आई गेस सभी को लर्न भी हैं साइकिल्स. अगर नहीं है जस्ट लेट मी नो, बिकॉज फोटोज इन दिस चैप्टर में से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है. तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स. Difference between C3 plants and C4 plants. C3 में लिखो, they are mainly temperate plants. They are mainly temperate plants. C4 में लिखो, they are mainly tropical plants. C3 में लिखो, leaves do not show Krenz anatomy. In C4 they show Krenz anatomy. In C3 first stable compound is PGA. PGA क्या है? Phosphoglyceric acid. In C4 first stable compound is OAA, oxaloacetic acid. PGA की फुल फॉर्म क्या है? Phosphoglyceric acid. Okay, yes, Bank, you can leave it. Next point लिखो. They operate only in Kelvin cycle. And they operate in both Kelvin and Hatch and slack pathway. They work in both Kelvin and Hatch and slack pathway. और इसमें क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वन टाइप, और टाइप का नाम है ग्रैनल. और दूसरे में क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल. Okay, try to learn all the cycles by next class. I expect everyone to learn all the cycles by heart. और अगर किसी को लगता है difficulty, just let me know. ठीक है? Class, am I clear? Yes, ma'am. Okay, and बच्चे ये photosynthesis अभी recently हुआ है, तो cycles at least learn कर लो, क्योंकि अभी learn कर लोगे तो, क्योंकि revision का मतलब ही यही है, आप साथ साथ learn कर लो. इसका hardly आपको half an hour लगेगा या 1 hour लगेगा आपको cycles learn करने में. और I'll try to take the test also in the next class. अगर किसी को लगता है कोई भी प्रॉब्लम, रितिका, कृतिका, किसी को भी, रिया, जस्ट लेट मी नो. मनप्रीत, किसी को भी, शमीत को, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ आ रहा है, या मुझे नहीं क्लियर हो रहा, या मुझे साइकिल लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आपने इन्फॉर्म करना है. ओके,
ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है बच्चे, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. ओके, बाय बाय।